Yes, good morning everyone. Today we will continue from question number 5, exercise 13.1, and the chapter is exponents and powers. And question number 5, question number 5, first part is express each of the following as product of powers of their prime factors. मतलब जो नंबर हमें दिए हुए हैं 648 है, यहाँ पे इनको हमने क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टर इनके बनाने हैं, फिर इसको हमने एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर, राइट। जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनको हमने एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर, राइट। अब इसके प्राइम फैक्टर बनाइए, ये कितना आ गया, 2 324 648, 2 162 324, 281 162, 327 81, 39 27, 33 9, 31 3, राइट। तो 648 को हम कैसे लिख सकते हैं, 648 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, राइट। अब 2 जो है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 times. 2 is multiplying by itself 3 times, so it can be written as 2 raised to 3. And then multiply 3 कितने times जो है multiply हो रहा है, 4 times, 1 2 3 4, so it can be written as 3 raised to the power 4, right. So 648 is expressed as a product of prime factor as 2 raised to 3 multiply 3 raised to 4, right. So this is the required answer. एक और पार्ट कर लीजिए, सेकंड पार्ट। जिन्होंने ये फर्स्ट पार्ट जिसको समझ आ गया वो सेकंड पार्ट इजीली कर सकता है। सेकंड पार्ट है 405 3 135 405, 345 135, 315 45, 3 5 15, 5 1 5, right. So 405 is equal to 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 5, right. So here 3 is multiplying by itself 4 times, so it can be written as 3 raised to the power 4, और 5 only one time है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 raised to the power 1, और simply 5 भी लिख सकते हैं, understood है, right. So 405 is equal to 3 raised to the power 4 multiply 5 raised to the power 1, right. So this is the required answer. नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसके फर्स्ट 4 पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूं, अगर फर्स्ट पार्ट जिसको समझ आ गया वो सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट अपने आप कर सकता है बहुत इजीली। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, simplify 2 multiply 10 raised to 3, 2 multiply 10 raised to the power 3, right. अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये आ जाएगा 2 multiply 10 raised to the power 3 means 10 is multiplying by itself 3 times, so it can be written as 2 multiply 10 multiply 10 multiply 10, and this is equal to 2 multiply 10 multiply 10 multiply 10 10,000 1000, 10 multiply 10 multiply 10 1000, and 1000 multiply 2 is equal to 2000. तो सिंप्लीफाई करके कितना आ गया ये। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है 7 raised to the power 2 multiply 2 raised to the power 2,
7 raised to the power 2 means 7 multiplies 7 and 2 raised to the power 2 means 2 multiplies 7 into 7 कितना हो गया 49 2 into 2 4 so 49 multiplies 4 is equal to 196 so 196 is the required simplified part of 7 raised to 2 multiplied 2 raised to 6 right अब सभी थर्ड और फोर्थ पार्ट करें खुद थर्ड पार्ट 2 raised to the power 3 multiplies 5 right तो यह आ गया 2 raised to the power 3 means 2 multiplies 5 यह आ गया 8 multiplies 5 and this is equal to 1 Next is fourth part. P multiplies 4 raised to 4 तो ये आ गया P multiplies 4 multiplies 4 multiplies 4 multiplies 4 and this is equal to P multiplies 4 को 4 times multiply करेंगे कितना आ गया 256 तो ये आ गया 3 multiplies 256 राइट अब 3 को 256 के साथ मल्टीप्लाई करें यह आ गया हमारे पास 768 राइट तो 768 is the required simplified form of 3 multiplies 4 raised to the power Next, question number 7. First part. Simplify -4 raised to the power 3. -4 raised to the power 3 means -4 multiply -4 multiply minus. Right? और simply आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -4 raised to the power 3 is equal to -4 raised to माइनस आपने बाहर रख लेना है देन 4 raised to the power 3 क्लियर अब इससे क्या है ये देखिए अब मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया अगर नेगेटिव नंबर है और उसका जो एक्सपोनेंट है वो ऑड है नेगेटिव का एक्सपोनेंट ऑड है तो उसका आंसर हमेशा जो है वो नेगेटिव में है हमेशा क्या आएगा नेगेटिव में तो इसीलिए -4 raised to the power 3 वो कितना आएगा -64 राइट आप ऐसे भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बाहर रख के 4 multiply राइट इन दोनों वे से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर यही नेगेटिव नंबर है अंदर और उसका जो एक्सपोनेंट है वो इवन नंबर है तो हमेशा उसका आंसर पॉजिटिव में है फॉर एग्जांपल अगर मैंने -2 raised to 2 लिख दिया -2 ये क्या है इवन पावर है इवन एक्सपोनेंट है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव में आएगी मींस +4 आएगा अगर यही नेगेटिव होता -3 होता या -5 होता तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा माइनस में क्लियर तो ये आ गया आपके पास -4 multiply -4 and this is equal to -60 clear so this is the required next second part -3 multiply -2 raised to the power 3 राइट तो ये आ गया -3 -2 raised to the power 3 कितना होगा अभी मैंने आपको इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट जो आपको बताया वही यूज कर सकते हैं आप यहाँ आपने बाहर माइनस रख लेना है क्योंकि ये ऑड है
इसका जो एक्सपोनेंट है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और 2 को 3 टाइम्स, -2 को नहीं 2 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 8, तो ये कितना आ गया -8, राइट। अब माइनस नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका पॉजिटिव इंटीजर, तो ये आ गया आपका +24, और सिंपली यू कैन राइट ओनली 20। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर, कंपेयर द फॉलोइंग। Question number 8, first part, compare the following numbers, and the numbers are 2.7 multiply 10 raised to 12, and second number is 1.5 multiply 10 raised to 1.5 multiply 10 raised to 8। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करना मीन्स विच नंबर इज ग्रेटर और विच नंबर इज लेस। ठीक है, कंपैरिजन यही करना हमने, या इक्वल है यही कंपेयर करना हमने। तो सबसे पहले क्या करना, अब आपने यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि अगर यहाँ 10 raised to 8 है, 10 raised to 8 है, और यहाँ 10 raised to 12 है, और ये दोनों नंबर डिफरेंट है, तो हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि जो 10 का जो एक्सपोनेंट है दोनों केसेस में सेम एक्सपोनेंट कर देना। अगर यहाँ पे 10 raised to 8 है, ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ 10 raised to 8 है तो यहाँ भी आपने 10 raised to 8 बनाना। अब वो बनेगा कैसे, ये तो है नहीं कि हम उसमें से 12 में से 4 माइनस कर देंगे, नो। अब करना कैसे है आपने कि 2.7 मल्टीप्लाई 10 raised to 12 का मतलब क्या है कि 10 इज मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ 12 टाइम्स, 12 इज मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ 12 टाइम्स, 10 is multiplying by itself 12 times। तो उसमें से जो 4 टाइम्स है, जैसे 1 2 3 4, इसको सेपरेट कर लिया। अब 12 में से 4 ये सेपरेट हो गया, तो कितने एक्सपोनेंट बच गए इसके 10 के, 10 raised to the power 8। क्लियर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 1 2 3 4 और ये 5 2.7, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपके पास 27000, and then multiply 10 raised to 8, and then multiply 10 raised to 8। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने जो 10 का जो एक्सपोनेंट है उसको इक्वल करना है, तभी हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। अब ये 10 raised to 8 हो गया। नेक्स्ट है 1.5 10 raised to 8, 1.5 10 raised to 8। अब आपने इन दो को जो है वो आपने बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है, ये जो पावर्स हैं इनको हमने बिल्कुल नहीं देखना है। अब मैं ये जो सर्कल कर रहा हूँ, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, इन नंबर में से आपने देखना कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर लेस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसकी कंपैरिजन कर देंगे। ठीक है, अब 10 raised to 8 दोनों केसेस में तो एक जैसा ही है, तो आपने इसको बिल्कुल नहीं देखना। अब आपने ये दो नंबर्स में से चेक करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो क्लियरली 27,000 इज ग्रेटर देन 1.5, 27,000 इज ग्रेटर देन 1.5। जब ये इस नंबर से ग्रेटर है तो इसका मतलब इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, राइट। हेंस
2.7 multiplied 10 raised to 12 is greater than 1.5 multiplied 10 raised to the power. Clear? So this is the required comparison. तो इस वे से हमने इसको कंपेयर करना है। नेक्स्ट हम करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। First law is multiplying power with the same base. Multiplying power with the same base. Multiplying power with the same base. अब इसका क्या मीनिंग है? एक पावर हमारे पास है a raised to m and second is a raised to n. ठीक है? These are the two powers where m and n are whole numbers and a with a non-zero integer. Where m and n whole numbers and a non-zero integer. Non-zero integer, right? तो अब ध्यान से बच्चे समझना सभी ने कि अगर हम दो पावर्स को मल्टीप्लाई करें, ध्यान से समझना, दो पावर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये एक्सपोनेंट होता है, ये बेस होता है। तो दिस इज द केस ऑफ मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस। पावर विद द सेम बेस, ठीक है? बेस सेम है उसका और उसके बेस सेम है, तो उस केस में हमने उनकी मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है? तो उस केस में हमने क्या करना है कि बेस को वन टाइम ऐसे रहने देना और जो उसके एक्सपोनेंट है उसको हमने ऐड कर देना। a रेज़ टू द पावर n प्लस n हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये दे दूं क्वेश्चन 2 रेज़ टू 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू 4, ठीक है? तो आपने ये नहीं कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, 2 को 4 टाइम्स, तो वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो उसको और शॉर्ट करने के लिए हम ये लॉ यूज करते हैं, ठीक है? अब ये दोनों केसेस में, इस केस में देखिए दिस इज द केस ऑफ मल्टीप्लाइंग, दिस इज द केस ऑफ मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस। दोनों का जो बेस है वो सेम है, तो वो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 2 रेज़ टू 3 प्लस 4। उनके एक्सपोनेंट को हमने ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू clear? So this is the case of first law. This is called first law, and this is the case of multiplying powers with the same base. Clear? तो जब भी आपको ऐसा केस दिखे मल्टीप्लिकेशन का, तो आपने इस वे से उसको सिंप्लीफाई करना है, राइट? अब आप बच्चे सभी ट्राई दीज पेज नंबर 254 पे जो क्वेश्चंस हैं, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बताया था कि ये पूरा जो कंप्लीट है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपने सिंप्लीफाई करके जो आंसर है उसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना, उसको एज इट इज इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहने देना है, ठीक है? अब इस लॉ को यूज करके आप ट्राई दीज पेज नंबर 254 पे जो है उसे कीजिए सभी। वेरी गुड। ट्राई दीज पेज नंबर
254. First, 2 raised to the power 5 multiply 2 raised to the power 3. Second, करें सभी सिंप्लीफाई से एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. आपने आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रहने देना है. p raised to 3 multiply p raised to 2. Third is 4 raised to 3 multiply 4 raised to 2. a raised to 3 multiply a raised to 2 multiply a raised to 7. Fifth part, 5 raised to 3 multiply 5 raised to 7 multiply 5 raised to 12. Sixth part, minus 4 raised to 100 multiply minus 4 raised to 20. Yes. अब ये सारे जो केसेस हैं वो कौन से केस हैं? मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस. मल्टीप्लाइंग पावर विद सेम बेस. अब इस केस में भी देखिए बेस सेम है, इसमें भी बेस सेम है, थर्ड पार्ट में भी बेस सेम, सभी पार्ट में जो है बेस सेम है. तो उस केस में हम क्या करेंगे? उनके एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे. तो इट विल बिकम 2 raised to 5 plus 3 and this is further equal to 2 raised to 8. Right? Next is again this is the case of multiplying power with the same base. बेस क्या है? p. तो उनको एक्सपोनेंट को हमने ऐड कर देना है. तो यह आ गया p raised to 3 plus 2 and this is equal to p raised to 5. Clear? Next is 4 raised to 3 multiply 4 raised to 2 and this is equal to 4 raised to 3 plus 2 and this is equal to 4 raised to the power 5. Right? अब देखिए यहां पे 3 पावर्स हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले इन दो को सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको थर्ड के साथ कर लेंगे. तो a raised to 3 multiply a raised to 2 कितना हो गया? a raised to 3 plus 2 and then multiply a raised to 7. तो यह आ गया आपका a raised to 5 multiply a raised to 7. अगेन ये कौन सा केस बन गया? फिर से वही सेम केस. तो ये हो गया a raised to 5 plus 7 and this is equal to a raised to the power 12. राइट? नेक्स्ट में भी ऐसे ही है कि पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इन दो प्रोडक्ट को एंड देन मल्टीप्लाई विद द थर्ड. तो यह आ गया 5 raised to 3 plus 7 multiply 5 raised to 12 multiply 5 raised to 12. तो यह आ गया आपका 5 raised to 10 multiply 5 raised to 12. अगेन दिस इज द केस ऑफ मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस. तो उसमें भी ऐसे करना, हमने एक्सपोनेंट को ऐड कर देना है. तो यह आ गया 5 raised to 10 plus 12 and this is equal to 5 raised to 22. Clear? Next, minus 4 raised to 100 multiply minus 4 raised to 20. Again this is the case of multiplying power with the same base और यहाँ पे बेस सेम कौन सा? -4. तो ये हो गया -4 raised to 100 plus 20 and this is equal to -4 raised to 120. Right? तो ये ट्राई दीज पेज नंबर 254 से जो है वो कंप्लीट हो गए. वो जो किससे रिलेटेड है? मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस. राइट?